قدیم بغداد کی سنہری گلیوں سے دور دجلہ کے کنارے ایک عظیم سلطنت آباد تھی۔ اس سلطنت کے مینار آسمان سے باتیں کرتے تھے اور بازاروں میں دنیا بھر کے تاجر اپنے قافلے لے کر آیا کرتے تھے۔ دور دور تک اس ریاست کی دولت، شان و شوکت اور طاقت کے چرچے تھے، مگر اس تمام عظمت کے پیچھے ایک ایسا بادشاہ تھا جس کے دل میں رحم کم اور غرور زیادہ تھا۔ اس بادشاہ کا نام سلطان جابر شاہ تھا۔ جابر شاہ جوانی ہی سے اقتدار کا دیوانہ تھا۔ اس کے والد ایک نرم دل اور انصاف پسند بادشاہ تھے، لیکن جابر شاہ بچپن سے ہی طاقت اور دولت کو سب کچھ سمجھتا تھا۔ جب وہ محل کی بلند چھتوں پر کھڑا ہو کر شہر کو دیکھتا تو اس کی آنکھوں میں عجیب غرور چمکنے لگتا۔ وہ اکثر اپنے استاد سے کہتا، دنیا میں طاقتور وہی ہے جس کے پاس دولت اور خوف ہو، محبت اور رحم صرف کمزوروں کے ہتھیار ہیں۔ استاد خاموش ہو جاتا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ غرور کی آگ ایک دن اس نوجوان شہزادے کو ضرور جلا دے گی۔ وقت گزرتا گیا۔ جابر شاہ کے والد بیمار پڑ گئے اور چند برس بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ پورا شہر غم میں ڈوب گیا، مگر جابر شاہ کے دل میں افسوس سے زیادہ اقتدار کی خوشی تھی۔ تخت نشینی کے دن اس نے سونے کا تاج پہنا، قیمتی ریشمی لباس زیب تن کیا اور پورے دربار کے سامنے اعلان کیا، آج سے سلطنت میں میرا حکم آخری حکم ہوگا۔ دربار سلطان سلامت کے نعروں سے گونج اٹھا، مگر اس دن ایک بوڑھا وزیر خاموش کھڑا رہا۔ اس کی نظریں جابر شاہ کے چہرے پر جمی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ طاقت کے نشے میں ڈوبا یہ بادشاہ اپنی سلطنت کو اندھیرے میں لے جائے گا۔ چند ہی مہینوں میں جابر شاہ نے ٹیکس بڑھا دیے، غریب کسانوں سے اناج چھین لیا گیا، مزدوروں سے دن رات کام لیا جانے لگا، اور جو کوئی مخالفت کرتا اسے قید میں ڈال دیا جاتا۔ محل کے اندر ہر رات جشن ہوتا، جبکہ شہر کے غریب علاقوں میں بچے بھوک سے روتے تھے۔ ایک رات جابر شاہ اپنے شاہی باغ میں ٹہل رہا تھا۔ چاندنی محل کی سفید دیواروں پر پڑ رہی تھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، میری شان کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، میں اس زمین کا سب سے طاقتور انسان ہوں۔ اسی لمحے تیز ہوا چلی، باغ کے درختوں کے پتے سرسرائے، جیسے قدرت اس کے غرور پر خاموش احتجاج کر رہی ہو۔ اگلی صبح سلطان نے اپنے دربار میں ایک عظیم اعلان کیا، میں دنیا کا سب سے شاندار محل تعمیر کرواؤں گا، ایسا محل جو آنے والی صدیوں تک میری عظمت کی نشانی رہے گا۔ درباریوں نے تالیاں بجائیں، وزیر جھک گئے، مگر عوام کے دل خوف سے بھر گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس محل کی قیمت ان کے خون اور پسینے سے ادا کی جائے گی۔ محل کی تعمیر کے لیے بغداد، شام، مصر اور فارس سے کاریگر بلائے گئے۔ سنگ مرمر کے بڑے بڑے پتھر لائے گئے، سونے کے دروازے بنائے گئے، قیمتی جواہرات دیواروں میں جڑے گئے۔ ہر طرف ہتھوڑوں کی آوازیں گونجتی رہتیں۔ مزدور دن رات کام کرتے، دھوپ میں جلتے، بھوک برداشت کرتے، مگر کام رکتا نہیں تھا۔ اگر کوئی تھک کر بیٹھ جاتا تو سپاہی کوڑے برساتے۔ ان مزدوروں میں ایک نوجوان بھی تھا جس کا نام حمزہ تھا۔ وہ غریب تھا، مگر دل کا نرم اور ایماندار۔ اس کی بوڑھی ماں بیمار رہتی تھی۔ حمزہ ہر رات تھکا ہارا گھر لوٹتا اور اپنی ماں کے لیے دوا لاتا۔ ایک دن اس کی ماں نے اس سے پوچھا، بیٹا، کیا واقعی بادشاہ اتنا ظالم ہے؟ حمزہ نے آہ بھری، امی، اس کے محل کی ہر اینٹ میں غریبوں کے آنسو شامل ہیں۔ ماں خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، کیونکہ ظالم بادشاہ کے خلاف بولنا موت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ مہینے گزرتے گئے اور
उसकी बुलंद मीनारें सूरज की रोशनी में चमकती थीं। दीवारों पर सोने की नक्शो निगारी थी। अंदर के हालों में बड़े बड़े झाड़ फानूस लटक रहे थे। फर्श ईरानी कालीनों से ढके हुए थे। महल के इफ्तिताह के दिन पूरा शहर जमा था। जाबिर शाह सोने के तख्त पर बैठा मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पर गुरूर साफ झलक रहा था। देखो, उसने बुलंद आवाज में कहा, यह महल मेरी ताकत की निशानी है। दुनिया में कोई बादशाह मेरे बराबर नहीं। लोग खामोश खड़े थे। कुछ हैरान थे, कुछ खौफजदा, और कुछ के दिलों में नफरत थी। उसी हुजूम में एक सफेद दाढ़ी वाला फकीर भी खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सुकून था। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और बुलंद आवाज में बोला, ऐ सुल्तान, गुरूर इंसान को अंधा कर देता है। याद रखो, जो जमीन पर खुदा बनने की कोशिश करता है उसे मिट्टी में मिलने में देर नहीं लगती। दरबार में खामोशी छा गई। सिपाहियों ने तलवारें निकाल ली। जाबिर शाह गुस्से से कांप उठा। इस फकीर को फौरन यहां से निकाल दो। सिपाहियों ने फकीर को घसीटते हुए बाहर निकाल दिया, मगर जाते जाते वो एक बार पलटा और बोला, जब जमीन कांपेगी तो महल नहीं, सिर्फ आमाल साथ देंगे। उसकी आवाज देर तक जाबिर शाह के कानों में गूंजती रही, मगर गुरूर में डूबा बादशाह उस बात पर हंस दिया। महल बनने के बाद जाबिर शाह का गुरूर और बढ़ गया। वो खुद को नाकाबिले शिकस्त समझने लगा। महल में हर रात जश्न मनाया जाता। दूर दूर के बादशाहों के सफीर उसके महल की तारीफ करते। जाबिर शाह उन तारीफों को सुनकर और ज्यादा मगरूर हो जाता। लेकिन शहर के गरीब इलाकों में हालात खराब होते जा रहे थे। लोग भूख से परेशान थे, मजदूर बीमार हो रहे थे, किसान कर्ज में डूबते जा रहे थे। हमजा अपनी बीमार माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता था। एक रात उसकी माँ ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, बेटा, जुल्म ज्यादा देर कायम नहीं रहता। हमजा खामोश रहा, मगर उसके दिल में भी अजीब बेचैनी थी। उसी रात आसमान पर काले बादल जमा होने लगे। हवा में अजीब सी नमी फैल गई। परिंदे बेचैन होकर उड़ने लगे। शहर के बूढ़े लोग कहने लगे कि कोई बड़ी आफत आने वाली है। इधर महल में जश्न जारी था। जाबिर शाह कहकहे लगा रहा था। अचानक जमीन हल्की सी लर्जी, जामों में लहरें पैदा हुईं। कुछ दरबारी खौफसदा हो गए। ये क्या था? एक वजीर ने पूछा। जाबिर शाह हंसकर बोला, सिर्फ हवा का झोंका, मगर हकीकत में ये आने वाले अजाब की पहली दस्तक थी। अगली रात जलजले के झटके ज्यादा महसूस होने लगे। लोग घरों से बाहर निकल आए। औरतें दुआएं मांगने लगीं, बच्चे खौफ से रोने लगे। वही बूढ़ा फकीर दोबारा महल के दरवाजे पर आया। उसने कहा, मुझे सुल्तान से आखिरी बार बात करनी है। सिपाहियों ने उसे दरबार में पेश किया। फकीर ने जाबिर शाह की आंखों में देखते हुए कहा, अभी भी वक्त है। गरीबों का हक वापस कर दो, जुल्म छोड़ दो, वरना ये महल तुम्हारे गुरूर के साथ जमीन बोस हो जाएगा। जाबिर शाह गुस्से से चीखा, उसे कैद खाने में डाल दो। फकीर जाते जाते बोला, कुदरत जब फैसला करती है तो बादशाहों के तख्त भी लरस जाते हैं। उस रात हवा बहुत तेज थी। खिड़कियां हिल रही थीं। महल के लंबे राहदारियों में खौफनाक आवाजें गूंज रही थीं। फिर अचानक आधी रात के वक्त जमीन जोर से लर्जी। महल के सुतून हिलने लगे। दीवारों में दरारें पड़ गईं। लोग चीखते हुए इधर उधर भागने लगे। जाबिर शाह पहली बार खौफसदा हुआ। उसने भागने की कोशिश की, मगर जलजला शिद्दत इख्तियार करता गया। महल की बुलंद मीनारें गिरने लगीं। झाड़ फानूस जमीन पर टूटकर बिखर गए। बाहर पूरा शहर खौफ में डूबा हुआ था। लोग खुले मैदानों में जमा होकर दुआएं मांग रहे थे। हमजा ने अपनी माँ को सहारा देकर घर से बाहर निकाला। उसने दूर महल की तरफ देखा, जहां से गिर्द और धुआं उठ रहा था। महल गिर रहा है, उसने हैरत से कहा। एक खौफनाक धमाके के साथ महल का मरकजी हिस्सा जमीन बोस हो गया। हर तरफ गिर्दो गुबार फैल गया। जाबिर शाह मलबे के नीचे दब चुका था। उसके कीमती कपड़े गिर्द से भर गए थे। माथे से खून बह रहा था। उसने कमजोर आवाज में पुकारा, कोई है, मुझे बचाओ। मगर उस वक्त ना उसके चापलूस वजीर उसके साथ थे, ना सिपाही। सिर्फ खामोशी थी और टूटते हुए गुरूर की आवाज।
सुबह होने तक जलजला रुक चुका था। सूरज की पहली किरण जब शहर पर पड़ी तो हर तरफ तबाही का मंजर था। कई इमारतें गिर चुकी थीं, लोग अपने प्यारों को तलाश कर रहे थे, मगर सबसे ज्यादा तबाही उस अजीम महल को पहुंची थी जिस पर जाबिर शाह को बेहद गुरूर था। हमजा और चंद लोग जख्मियों की मदद कर रहे थे। अचानक उन्हें मलबे के नीचे से किसी की कमजोर आवाज सुनाई दी। वो दौड़कर वहां पहुंचे। पत्थर हटाए गए तो सब हैरान रह गए। वो जाबिर शाह था। बादशाह की हालत बहुत खराब थी। उसकी आंखों में खौफ, बेबसी और पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। हमजा चंद लम्हों तक खामोश खड़ा रहा। उसके दिल में गुस्सा भी था, नफरत भी, मगर फिर उसे अपनी माँ की बात याद आई। इंसान की पहचान उसके रहम से होती है। हमजा ने आगे बढ़कर सुल्तान को पानी पिलाया। जाबिर शाह की आंखों से आंसू निकल आए। उसने टूटी हुई आवाज में कहा, मैंने तुम लोगों पर जुल्म किया, फिर भी तुम मेरी मदद कर रहे हो? हमजा ने आहिस्ता से जवाब दिया, इंसानियत जुल्म से बड़ी होती है। ये अल्फाज जाबिर शाह के दिल में तीर की तरह उतर गए। चंद दिनों तक सुल्तान एक आम जख्मी इंसान की तरह एक छोटे से घर में पड़ा रहा। उसने पहली बार गरीबों की जिंदगी करीब से देखी। उसने देखा कि कम खाने के बावजूद लोग एक दूसरे के साथ बांट कर खाते हैं, गम के बावजूद एक दूसरे की मदद करते हैं। एक रात जाबिर शाह खामोश बैठा था। बाहर बारिश हो रही थी। उसने हमजा से कहा, मैंने पूरी जिंदगी दौलत और ताकत को सब कुछ समझा, मगर आज मालूम हुआ कि असल ताकत दिल की होती है। हमजा ने जवाब दिया, गुरूर इंसान को अंधा कर देता है। जाबिर शाह की आंखों में आंसू आ गए। उसे वो फकीर याद आया। चंद हफ्तों बाद जाबिर शाह ने दोबारा दरबार बुलाया, मगर इस बार उसके अंदाज में गुरूर नहीं था। वो सादा लिबास पहन कर आया। उसने अवाम के सामने खड़े होकर कहा, मैंने तुम लोगों पर जुल्म किया। मैंने ताकत की नशे में खुद को सबसे बड़ा समझ लिया था, मगर कुदरत ने मुझे मेरी हकीकत दिखा दी। आज से इस सल्तनत में कोई भूखा नहीं सोएगा। गरीबों के टैक्स खत्म किए जाते हैं और खजाने का बड़ा हिस्सा अवाम की फलाह पर खर्च होगा। लोग हैरान थे। किसी ने कभी जाबिर शाह को इस तरह आजिज नहीं देखा था। उसी वक्त दरबार के दरवाजे पर वही बूढ़ा फकीर नमूदार हुआ। उसके चेहरे पर सुकून था। जाबिर शाह फौरन अपने तख्त से उतर आया और उसके कदमों में झुक गया। मुझे माफ कर दो, उसने कहा। फकीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं कौन होता हूं माफ करने वाला? असल माफी उस वक्त मिलती है जब इंसान सच्चे दिल से बदल जाए। जाबिर शाह की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार दिल से तौबा की। वक्त गुजरता गया। महल के खंडरात वहीं मौजूद रहे ताकि आने वाली नस्लें उन्हें देखकर सबक हासिल कर सकें। लोग अपने बच्चों को वहां ले जाकर कहते, ये उस बादशाह का महल था जिसे अपनी ताकत पर गुरूर था, मगर एक जलजले ने उसे उसकी हकीकत दिखा दी। हमजा बाद में सल्तनत का मुशीर बना। वो हमेशा इंसाफ और रहम की बात करता। जाबिर शाह ने अपनी बाकी जिंदगी अवाम की खिदमत में गुजार दी और उस दिन से बगदाद के लोगों ने एक बात हमेशा याद रखी, इंसान की असल अजमत महलों, दौलत या ताकत में नहीं होती, बल्कि आजिज़ी, रहम और अच्छे अखलाक में होती है।